15 minutes, after 15, 20 minutes, they have started running. And again, they're leaving the lecture as well. Okay. So, anyone can basically tell what do you mean by strategic management? After a long time, we have started with our lecture. Anyone can say basically what do you mean by strategic management? Anyone? So, Yes. we have done with meaning of strategic meaning of management, and I think it's a nature of management. Yeah. So can you just tell me in a very short way what do you mean by strategy? What important role it has into the organization? Why it is considered one of the most important concepts in the organization? Uh, strategic means like to plan something which we will execute in future. Right. It is very important in business to run the organization efficiently. Uh, uh, Mm-hmm. to do this, we have to plan. Uh, we have to make a strategy, sir, about in future what we will do, on which date the product we will launch, what product we will launch, Mm-hmm. about everything about organization, what we Right. will do in future. Yes, it's absolutely right. The strategy basically to be the planning. Okay, the most important is that the what how you gonna increase with your organization profit. Okay, it should be in numbers, it should be in percentage. Okay, how we should expand our business, how should we diversify our business, how to increase our business into multiple times. Okay, this is important into the organization. कोई भी काम करोगे कोई भी कुछ करोगे तो आपको स्ट्रेटेजी बनाना ही पड़ता है इफ यू रियली वांट टू स्कोर कैन यू जस्ट स्विच ऑफ योर माइक जस्ट स्विच ऑफ योर माइक whenever you really want to do something effectively and efficiently that would be anything in your life अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए या अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है या आपको अच्छा स्कोर करना है whatever you want to do in your life you required good amount of strategy you required good amount of planning without planning you cannot basically do any activity you cannot perform any activity. Similarly, into the organization, if you really want to grow, if you really want to earn a profit, the most important is that your strategy. Strategy can be said as a backbone. It's something like without the planning, planning के बगैर कोई भी काम नहीं होता है. अगर आपको घूमने भी जाना है कहीं पे, अगर आपको ट्रिप पे जाना है या हॉलीडेज पे भी जाना है, तो you require a planning. Without planning, you won't able to succeed your holiday. Similarly, in companies also, when companies have some target, if we want to earn 1,000 crores, 2,000 crores, 10,000 crores, or they want to earn the profit in percentage, 10%, 15%, quarterly, half yearly, yearly, okay, they have the multiple targets available with them. So the top management always make good amount of strategy, so they get good amount of businesses into the organization and they run the company efficiently. That's why strategies are important. Strategy management is a process of formulating and implementing strategies to achieve a long-term goals and a competitive advantage. Now, what do you mean by long-term goals? Can anyone tell what is a long-term goal? What are the long-term goals of the organization? Long-term goals can be said as whenever company would like to achieve the target for next 10 years, 15 years, 20 years, okay, 30 years. There are the visions of the company. There are always a mission, visions, goals, objectives of the organization that needs to be achieved. Okay, for that we required a good amount of strategies to be made for long-term goals. Okay, and again a competitive advantage. अभी आपने देखा होगा मार्केट में you have n numbers of mobile phones available with you. You have to just sit on a Google, you have to compare the product with 10 different products in a market and whichever best features, characteristics, okay, the best model you have with a competitive rate.
फॉर एग्जाम्पल 20,000 में आपको कम से कम 10 से 15 मॉडल मिल जाएंगे, लेकिन वो 10 से 15 मॉडल में विच इज द बेस्ट मॉडल? शुड वी गो फॉर वन प्लस, शुड वी गो फॉर सैमसंग, शुड वी गो फॉर एनी अदर प्रोडक्ट, जैसे ओप्पो वीवो हो गया? तो जो भी बेसिकली आपको प्रोडक्ट वो रेंज में मिलता है, is it good, what kind of features it has, that set to be your competitive advantage. So सिर्फ अपना प्लानिंग से नहीं होगा, उनको लॉन्ग टर्म के हिसाब से what the competitors are doing in a market, उनको उनको टक्कर देने के लिए, उनको बेसिकली उनके साथ कॉम्पीट करने के लिए, दे हैव टू मेक श्योर दैट की प्राइस में 19-20 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है और आप उसको कुछ भी चार्ज करोगे। देयर आर प्रीमियम प्रोडक्ट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, एप्पल इज कंसिडर टू बी वन ऑफ द प्रीमियम प्रोडक्ट। अगर एप्पल का फोन की प्राइस आप चेक करोगे तो लाख रुपया, 70,000, 80,000, तो वैसी मोबाइल की प्राइस, दे आर नॉट reducing the price because they know the worth of the product. Okay, if you really want to take an example of a really premium product, you can go for Rolls Royce. Okay, Mercedes Benz, BMW, they also not reducing their price because they know about their own product, how the product is of art. हमको कुछ किसी भी तरह का कमर्शियल करने का कुछ जरूरत नहीं है, will get good amount of customers. So again, the competitive advantage also plays an important role. Strategy is a perspective, positioning, plan, and action. It is a bridge on the one hand and tactics and concrete actions on the other. It's like to be a policy. Okay, जहाँ पे एक साइड पे आप टैक्टिक्स भी बना रहे हो और आपको एक्शन की भी जरूरत है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ प्लानिंग किया। प्लानिंग करने के बाद you need to execute that plan. You need to implement that plan to get the successful results. आपने अच्छा खासा स्ट्रेटेजी को बना लिया, यू हैव मेड ऑल द स्ट्रेटेजी, आपने अपना प्रोडक्ट बना लिया, उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, इट कैन गिव गुड अमाउंट ऑफ कंपटीशन टू द कंपटीशन इन द मार्केट विद अदर प्रोडक्ट। स्टिल यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इफेक्टिवली दिस प्रोडक्ट कैन इजीली वर्क इन द मार्केट। दैट्स व्हाई इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि इसको टैक्टिकली कैसे बनाया जाए और कॉन्क्रीट एक्शन कैसा लेना चाहिए। Without strategies, policies, and plans, a person like without a backbone. When you talk about an organization, अगर companies में strategies नहीं होगा, policies are essentially a Bible. It is a guideline. It is a rules and regulations which are formed by the organization. Each and every employee of a company needs to follow that all policies and plans in the organization. अगर policy follow करोगे, which means you're following the system. You are following the guidelines which are made by the organizations to run the company smoothly. Again, the term strategy is derived from the Greek word strategos, meaning the general leading the army. Whenever you take an example of an army, a good amount of generals, lieutenants basically lead the entire team. They take good amount of decisions. They make the plan in advance. They make the strategies. They make the backup plan. ऐसा नहीं है कि आपके पास एक ही प्लान होता है. There's a plan A, plan B, plan C, plan D, as well as you have plan 1, 2, 3, 4. अगर आपको प्रोडक्ट लॉन्च भी करना है मार्केट में, तो आप एक ही प्लान लेके नहीं बैठ सकते। The most important part is that you need to have at least 3 to 4 backup plans. For example, unfortunately, अगर आपका कोई भी एक प्रोडक्ट का प्लानिंग फॉल्ट हो जाता है या आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो, तो यू शुड हैव अ बैकअप प्लान, दैट्स कॉल्ड प्लान बी। अगर वो भी वर्कआउट नहीं होता है तो यू शुड हैव प्लान सी। तो अगर ऐसे आपके पास बैकअप प्लान रहेंगे तो यू कैन इजीली डू दी वर्क। It is a decision of a top management that directs organizations towards the predetermined goals. See, the strategies are always made by top management. It is not the responsibilities of a lower level employees. कि कंपनी के जो कंपनी चलाते हैं वो सारे लोग टॉप मैनेजमेंट के कंपनी चलाते हैं। वो सारे कंपनीज के रूल्स रेगुलेशंस फॉर्म करते हैं और फॉर्म करने के बाद दे इम्प्लीमेंट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। So whatever new rules, regulations, policies, strategies, plannings are made, it comes from top management to the middle management and to the lower management. Middle management और lower management को उनका सारा strategies को खाली implement करना होता है, लेकिन formulation, उसका planning, वो सारा चीज it is a responsibility of the top management. Okay. This is a destination. Strategy is a central vehicle for attaining a certain competitive advantages. A fundamental difference between military and a business strategies is that in a business strategy is formulated, implemented, and evaluated.
See, the most important part of a strategy is that the strategies are formulated. उसको बनाते हैं, उसको बनाने के बाद implement करते हैं. They need to be implemented into the organization. And third, evaluation. Now, what do you mean by evaluation? Evaluation का मतलब होता है कि जो भी हमने strategy बनाया, उसको जो implement किया, वो काम किया कि नहीं किया. उसका हमको रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है. That's said to be in your evaluation. Okay, we can go in detail in further slides. Okay, this is a process of a strategy to define company's objectives. Now, can anyone tell the difference between goals and objectives? Anyone can tell what is the difference between goals and objectives? कोई बोल सकता है difference between goals and objectives को? Sir, goals are long term and objectives are short term strategies, or we can say objectives can change according to the हाँ. condition of the business. Okay, right. And Goals goals are, also some goals are something long-term objective, but goals are something like that needs to be achieved in long term. Okay, wherein the objectives are the actions. Okay, if the organizations don't have the clear goals, the company won't able to achieve that goal, and objective helps them to achieve that goal. अगर आपके पास गोल्स है तो आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म होते जाएंगे. पर अगर आपका गोल ही क्लियर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू स्कोर 80% in coming semester or 85% in a coming semester, or the company want to grow by 10% or 15%, they want to increase the sales by 15%. जो 15% वाला कॉन्सेप्ट होता है, अगर वो क्लियर नहीं है उनके दिमाग में कि हमको एग्जैक्टली कितना परसेंटेज बढ़ाना है हमारा प्रॉफिट, that goals need to be understand by the organization. Because अगर आपका गोल फिक्स हो गया ना तो आप आपकी सारी प्लानिंग कर सकते हो. अगर आपका गोल डिफाइन नहीं होता है तो यू विल बी रनिंग हियर एंड देयर एंड यू विल नॉट गेट द एंड. आप भागते रहोगे यहाँ वहाँ, लेकिन आपको आपका प्रॉफिट नजर नहीं आएगा. You are wasting your all your resources, manpower, money, infrastructure, everything, but you won't able to achieve your end goal. That's why objectives are important. If you have a defined objectives, you will always get good amount of defined goals. You will get your objectives. Similarly, mission and vision. Mission said to be your short-term goals, wherein the vision said to be your long-term goals. विजन ये सबसे दूर की चीज होती है. टेक एन एग्जांपल ऑफ रिलायंस. धीरूभाई अंबानी सर basically have seen the vision that I want to create a Reliance industry, and today the Reliance industry is one of the top profit making organizations. ओके, नाउ बेसिकली मुकेश अंबानी और उनके ब्रदर जो भी काम कर रहे हैं, जो जैसे भी काम कर रहे हैं, ओके, ड्यू टू ऑल योर फादर. उनके फादर ने एक विजन देखा था बहुत साल पहले कि हमारी कंपनी इतनी बड़ी होगी, एंड टुडे दे आर रनिंग प्रॉफिट लाइक एनीथिंग. ओके, जमशेदजी टाटा, जे.आर.डी. टाटा, they also have seen the vision. See, having a sight, okay, having a sight and having a vision is two different parts. एक विजन को देखना सबसे अलग बात है. नाउ टाटा ग्रुप हैज कंप्लीटेड मच अराउंड लाइक 80-90 years today. Still they are one of the profit making organization into the industry. They are into every product. ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं जिसमें टाटा नहीं है. आप सिर्फ अल्कोहल को छोड़ दोगे तो वो सारे प्रोडक्ट में है, बिकॉज दे हैव सीन द विजन. एंड टुडे almost 10 lakh people are working, they are associated with Tata Group. So they have the vision in their mind. They want to see the company, they want to run the company profitability, they want to earn a profit. Similarly, at the same time, they want to give something to society. So this is always most important part is that you should clear with your objectives. Objectives, अगर sorry, you should be clear with our goals. अगर आपके goals सही होंगे, you can always form your objectives, and this objectives will take you to the goals. Similarly, आपका विजन क्लियर है तो यू कैन ऑलवेज फॉर्म योर मिशन. अगेन मिशन आर शॉर्ट टर्म. ये शॉर्ट टर्म होता है मिशन फॉर 5 years 10 years, बट विजन आपका बहुत बड़ा होता है. 100 साल 90 साल 80 साल का आपका विजन होता है. तो विजन बेसिकली आर लॉन्ग टर्म एंड मिशन आर योर शॉर्ट टर्म. गोल्स अगेन फॉर योर लॉन्ग टर्म, objectives basically for a short term. Okay. Then second part, you have to analyze the environment. Now, which environment I need to analyze? Can anyone guess?
I need to analyze the environment. Which environment I need to analyze? Sir, marketing environment. Market environment. See, there's always two kinds of environments are there. Internal environment and external environment. External environment में आपके सारे बाहर वाले जो कंपनी के कंट्रोल के बियॉन्ड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, social factor, technological factor, legal factor. Okay, these are the factors which are beyond the control of a company that needs to be studied. अभी करंटली जीडीपी क्या चल रहा है, डॉलर का रेट क्या चल रहा है, मेरे प्रोडक्ट का मार्केट में आजकल क्या स्टेटस है, कितना प्रॉफिट हमको कमा के दे सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसे बनाया हुआ है, will the government policy will change, can this government policy will hamper our products, our profits. Okay, technological factor, what is the current technological factors basically are there into the country. Okay, what new technology, what new machines are required to form my product, okay, very efficiently at a very less period of time. These are the things that needs to be analyzed by the company. बट इसमें एक ही इसमें प्रॉब्लम है कि ये सारे चीज कंपनी के बियॉन्ड है. कंपनी इसमें कुछ नहीं कर सकती. कंपनी कैन नॉट कंट्रोल द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री. कंपनी कैन नॉट कंट्रोल द सोशल फैक्टर, लोगों के ट्रेंड, लोगों की परसेप्शन. ओके, लोगों के परसेप्शन को जज करना आज के डेट पे बहुत मुश्किल है. नाउ यू कैन सी इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ क्लोथिंग. ओके, आप गारमेंट्स का अगर एग्जांपल लोगे, जीन्स, लोग कपड़े पहनते हैं पूरा अपना बॉडी ढकने के लिए, बट नाउअडेज द ट्रेंड हैज चेंज. लोग फटे हुए जीन्स पहन रहे हैं. द न्यू ट्रेंड कमिंग इन अ मार्केट की लेजर कट, ब्लेड कट, स्टोन कट, क्या क्या नाम आता है इसे पता नहीं मुझे, बट दिस इज अ ट्रेंड इन अ मार्केट. ओके, एंड पीपल्स आर रियल लविंग दैट ट्रेंड. The most important concept of having jeans or clothes is to cover your body, but आज के डेट पर सब उल्टा हो रहा है. And the perception of the people are getting changed, the fashion is getting changed, so company also has to make that changes. अगर कंपनी कस्टमर्स के हिसाब से नहीं चलेगी, मार्केट के हिसाब से नहीं चलेगी, तो दे विल बी आउट ऑफ द मार्केट. यू हैव अ लाइव एग्जांपल ऑफ नोकिया. नोकिया वाज वन ऑफ द लीडिंग कंपनी. अगर आप लोग के टाइम पे पता नहीं, मतलब हम लोग वी आर द जनरेशन वेयर वी हैव बोथ द फोन. मतलब हमने नोकिया भी यूज किया ब्लैक एंड व्हाइट, और हमने स्मार्टफोन भी यूज किया. तो वी हैव बोथ द कॉम्बिनेशन. आई गेस आप लोग ने ज्यादा स्मार्टफोन यूज किए रहेंगे, और वो नोकिया का पता नहीं आपने यूज किया है कि नहीं किया है. So the more important part to say that Nokia was one of the leading company once upon a time. They have captured the market. All the people, all the people having Nokia in their hand. But similarly, they have to change the product. जैसे जैसे टाइम बदलता है, चेंजेस आना जरूरी है. एक टाइम के बाद वी गेट बोर विद सेम प्रोडक्ट, तीसरा दिन वो प्रोडक्ट यूज करेंगे. एंड दैट टाइम सैमसंग केम विद द कलर फोन. कीपैड था उनका, लेकिन उनके पास कलर वाला फोन था. देन दे केम विद द टच स्क्रीन. टच स्क्रीन एक छोटा सा फोन निकला. पीपल स्टार्ट लाइकिंग द टच स्क्रीन. धीरे धीरे दे केम विद द बिगर स्क्रीन. उन्होंने एक बड़ा सा स्क्रीन वाला फोन बनाया. अगेन पीपल लव दैट. एंड दे केम विद द टैब. सैमसंग का टैब अगर आप लोग ने तो 100% यूज किया होगा. सैमसंग का टैब था. ओके, टैब अभी भी है, लेकिन बहुत कम यूटिलाइज होता है, because you have n numbers of options right now, but Samsung का टैब था. तो the main point is that कि you have, एक टाइम पे लोग बोलते टच स्क्रीन यूज नहीं करना चाहिए, स्क्रीन खराब हो जाता है, उसका कुछ फिजिबिलिटी भी नहीं है, लॉन्ग टर्म भी नहीं होगा, जल्दी खराब हो जाएगा. दिस वाज द परसेप्शन इज ऑलवेज केप्ट इन द माइंड ऑफ द पीपल. बट नाउअडेज नॉट अ सिंगल पर्सन. अगर 100 में से 10 लोग के पास कीपैड वाला फोन होगा, पर 90 लोग के पास टच स्क्रीन वाला फोन होगा. So this is how the change is. But Nokia कहाँ पे यहाँ पे? Nokia is out of the market. That's struggling like anything. They, despite they were the market leaders, आज कहाँ पे वो लोग? कहीं पे भी नहीं. This is why the change of the environment is important. They failed to analyze the market. They failed to understand the customer perception. They failed to understand what actually customer needs. And they are failed in this due to they are out of the market. आज भी वो struggle कर रहे हैं अंदर आने के लिए मार्केट में. फिर भी लोग, कंपनी ने इतना ऑप्शंस क्रिएट करना, ओप्पो वीवो
Oppo, Vivo has gave you lot of options. मतलब आज के डेट पे यंग जनरेशन वांट सेल्फी, सेल्फी के लिए अच्छा कैमरा दे दिया, फ्रंट कैमरा 4 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 10 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दे दिया, पीछे वाला भी 10 मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल कैमरा दे दिया विद जूम, विद 3 स्क्रीन, एंड यू हैव अ बिगर स्क्रीन इन योर हैंड। अभी तो ओप्पो वीवो में तो यू हैव ऑप्शन की फोटो क्लिक किया तो आपके फेस पे जो पिंपल पिंपल रहेंगे वो भी दिखता नहीं, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट हैव ओप्पो वीवो फोन, बट मैंने देखा है कि फेस पे आपका जो भी होता है पिंपल वगैरह वो भी निकल जाता है, एकदम क्लियर हो जाता है। एंड पीपल क्लिकिंग दी सेल्फीज एंड पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया, लिंक्डइन पे डाल दिया या इंस्टा पे डाल दिया, फेसबुक पे डाल दिया, हैशटैग ये हैशटैग वो सब कुछ करते रहते हैं। तो कंपनी को फर्क नहीं पड़ता, कंपनी को प्रॉफिट कमाने से मतलब है। जो प्रोडक्ट सैमसंग 20,000 25,000 में देती है वो ओप्पो वीवो आपको 8-9 हज़ार में दे देता है, तो वाई टू गो फॉर 20,000? अगर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए कि जो फीचर मुझे ओप्पो वीवो में ये सारे मिलते हैं वो सेम फीचर मुझे सैमसंग में मिलेंगे, लेकिन प्राइस अगर देखोगे तो ह्यूज डिफरेंस, 10-2000 में डिफरेंस आता है। तो लोग ये देखते हैं। तो एनालाइजिंग द एनवायरनमेंट इज इम्पोर्टेंट, दिस आउटसाइडर एनालाइजिंग इम्पोर्टेंट। अगर आप उसको सोचोगे नहीं, उसको स्टडी नहीं करोगे, उसको एनालाइज नहीं करोगे तो आपकी कंपनी बाहर चली जाएगी। That's why to analyzing the environment is important. Now, when you talk about the internal part का मतलब होता है your customers, your employees, your stakeholders, your suppliers, okay, your shareholders. These are the people are the internal environment of the company. These people can be controlled. आप basically एम्प्लॉयज को कंट्रोल कर सकते हो, सप्लायर को कंट्रोल कर सकते हो, आप बेसिकली अपने कस्टमर्स को कंट्रोल कर सकते हो, बिकॉज यू कैन मेक द चेंजेस इन अ प्रोडक्ट। जो जो चेंजेस चाहिए, जो जैसा चेंजेस चाहिए वैसे चेंजेस कर सकते हो और अपना कस्टमर को अपने पास मोल्ड करके आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हो। आपके शेयर होल्डर्स, आपके स्टेक होल्डर्स, दिस पीपल्स वी आर द इंटरनल एनवायरनमेंट। यू कैन इजीली हैंडल दिस पीपल, तो आप उसको आराम से जज करके आराम से इनको अपने पास रख सकते हो, बट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आप बेसिकली अपने पास नहीं रख सकते। ओके, तो कीप इन द माइंड एनवायरनमेंट दो तरह के होते हैं, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड योर इंटरनल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है आपका पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, लीगल फैक्टर। ओके, ये सारे चीज आपके एक्सटर्नल में, विच इज द बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल में आपके आते हैं एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, सप्लायर्स, शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स। ओके, the next point you have to determine the quantitative targets. As I said earlier, each company needs to understand what exactly they want in coming quarter. अगले 3 महीने में उनको exactly क्या चाहिए। क्वांटिटेटिव टारगेट का मतलब होता है कि नंबर, क्वांटिटी, आई नीड टू सेल माय प्रोडक्ट, आई नीड टू सेल 1,000 computers in next 3 months, I need to sell 1 lakh laptops in next 3 months, I need to sell 500 or 5,000 automobile vehicles next 3 months. Now अगर आप देखोगे टाटा अल्ट्रोज इज वन ऑफ द लीडिंग कार इन द मार्केट। अगर आपने इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ा होगा, दे हैव डन लॉट ऑफ प्रॉफिट इन दिस क्वार्टर। अगर आपको सच में स्ट्रैटेजीज वगैरह समझना है ना तो इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ा करो। देयर इज नो नीड टू गो एंड हैव अ हार्ड कॉपी। सबके पास स्मार्टफोन है, डाउनलोड द इकोनॉमिक टाइम्स का ऐप, you can get every information about the business. Tata has really earned good amount of profit. Again, Tata Nexon is one of the safest cars. They have got 5 ratings, 5-star ratings in safety. So again, this car has gave lot of profit as compared to the other organizations. Still despite उन्होंने अच्छा प्रॉफिट कमाया है, मारुति इज वन ऑफ द लीडिंग कार। मारुति सुजुकी का बलेनो इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोडक्ट इन द मार्केट, जो लोगों ने ज्यादा पसंद किए हैं। तो लोगों ने ज्यादा पसंद क्यों किया है? क्योंकि एक तो मारुति का प्रोडक्ट है, मेंटेनेंस कम होता है, कोई भी लोकल गैरेज उसको हाथ लगा सकता है, आई डोंट हैव टू पे मोर, 8-9 लाख में गाड़ी आ जाती है। पेट्रोल वर्जन, अगेन पेट्रोल पीपल्स आर रियली प्रिफरिंग नाउअडेज अ पेट्रोल वर्जन, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस अभी रहा नहीं डीजल और पेट्रोल में, हमेशा 9-10 रुपए का फर्क रहा है।
तो जिसका रनिंग ज़्यादा है नहीं गाड़ी का तो पेट्रोल करता है. एंड अगेन if you have seen the advertisement of Maruti, they are really doing an advertisement, a famous advertisement कि भाई हम लोग हमारा डीजल व्हीकल डीजल वेरिएंट बंद से कर दिए और सारा हमारा पेट्रोल वर्जन आ रहा है. So this is how the people and they are molding the customer point of view कि आपका रनिंग देखो कितना है गाड़ी का, आपकी गाड़ी का व्हीकल का रनिंग कितना है, उसके हिसाब से बेसिकली आप चूज करो. एंड दे अगेन हैम्परिंग यू दैट यू चूज द पेट्रोल कार. So this is how the people take. अगर आप रोड पे देखते हो 10 में से 6 गाड़ी मारुति की आपको मिलेगी. वो डिजायर होगी, वैगनार होगी, सियाज होगी, ब्रेजा होगी, जो भी होगी, लेकिन आपको 10 में 6 गाड़ी आपको मारुति की मिलेगी बिकॉज द मारुति हैज टारगेटेड द मिडिल क्लास पीपल. तो क्वांटिटी टारगेट का मतलब होता है कि दैट नीड्स टू बी अचीव कि 5000 व्हीकल्स मेरा ये महीने में जाना चाहिए, मेरा कम से कम 15 से 20 हजार व्हीकल कमिंग क्वार्टर में जाना चाहिए. दिस इज हाउ पीपल कीप दैट क्वांटिटेटिव टारगेट. समटाइम्स बेसिकली परसेंटेज भी रखते हैं बट डिपेंड्स अपॉन कंपनी पॉलिसी. कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से होता है कि कंपनी को किस तरह से चाहिए. मेनी पीपल डोंट गो बाय परसेंटेज, दे गो बाय वॉल्यूम कि इतना क्वांटिटी का हमारा प्रोडक्ट सेल होना. अंडरस्टूड? एनी डाउट इन दिस टिल नाउ? Everyone can understanding the concept? Yes, sir. बाकी सब स्टोर है, किसी का आवाज ही नहीं आ रहा है. Yes, sir. Okay, Yes, sir. Understood, sir. good. Now the next is to link with the functional plan. Now what the functional plan? Anyone can tell? What are the functional departments? किसी को पता है functional departments क्या होते हैं? Different departments perform different functions like finance department, marketing department. Right. The finance department, HR department, marketing department, sales department, IT department, operational department, logistics department. These are the functional departments we have. So whenever the strategies come from top management, it goes to the second level, then goes to the functional level. The functional plan is more important. जो भी आप लोग का स्ट्रैटेजी होता है ये कौन से लेवल पे इम्प्लीमेंट होगा? फंक्शनल लेवल पे इम्प्लीमेंट होगा. फंक्शनल डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट हैज मोर इम्पोर्टेंटली टू अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी. अभी लोग स्कीम वगैरह बनाते हैं ना, 1 पे 1 शर्ट फ्री, 2 पे 1 शर्ट फ्री, 3 पे 1 शर्ट फ्री. दिस इज ऑल स्ट्रैटेजीज टू अट्रैक्ट कस्टमर. भले कुछ फ्री नहीं होता है, ये ध्यान में रखो. कुछ नथिंग इज फ्री इन दिस लाइफ. सिर्फ आपको हवा दिया है भगवान ने फ्री में, बस वो एक चीज आपको फ्री में मिलती है, बाकी कुछ भी फ्री में नहीं है दुनिया में. वॉट एवर पीपल थिंक दैट अरे 2 शर्ट लिया तो फ्री में, नो, इट इज अ स्कीम. यू आर ऑलरेडी पेइंग दैट मनी इन दैट 2 शर्ट. आप 1500 का 2 शर्ट लो, आपको 6 शर्ट फ्री मिलेगा. लेकिन कस्टमर को भी आजकल मालूम पड़ गया है कि भाई वो 2 शर्ट में भी 3 शर्ट का प्राइस इंक्लूड होता है. देयर इज नथिंग फ्री इन दैट. सो whenever you make strategies, whenever you make the plans from top management, that needs to be linked with the functional department, that needs to be linked with the functional organization. This functional department plays a very crucial role because ये लोग implement करेंगे plan. आप आज भी, अभी तो कोरोना चल रहा है बाहर, तो आप देखो रास्ते पे कैनोपी लेके खड़े रहते लोग. यूरेका फोक का देखा होगा आपने, यूरेका फोक, एक्वागार्ड के लोग एक छाता लेके रोड पे पैम्पलेट और डेमो लेके खड़े रहते हैं. व्हाई? बिकॉज सेल्स नहीं होता है इन लोगों का. तो रास्ते पे खड़े रहो, सेल्स पीपल हैव टू गो एंड साइड ऑन अ रोड. ओके, दे हैव टू गिव द पैम्पलेट. सम कस्टमर्स आस्क कि भाई प्रोडक्ट कैसा है, क्या करता है. There are many people, old age people don't use smartphones, they don't compare the product with other products. So there are many things that happen. तो ये 10 में से अगर आपने 2 कस्टमर भी कन्वर्ट कर लिया आपके सेल्स के लिए तो भी काफी है. This is how they make strategies and they link with the functional plan. Functional plan is more important. Then to conduct the performance analysis, the most important is to analyze the performance. जो भी हमने प्लान्स बनाया है, जो भी हमने प्लान्स इम्प्लीमेंट किया है, उसके बाद यू नीड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस कि हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया कि नहीं किया, कैसे किया. अगर हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो उसको और बेहतर कैसा करना चाहिए. अगर हमने बुरा परफॉर्मेंस किया तो क्या चेंजेस हमको करना चाहिए. दैट नीड्स टू बी अंडरस्टैंड. दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. अभी आप देखो अभी हाल ही में ड्यू टू दिस लॉकडाउन
नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हो रहा है मार्केट में। अगर आपने ध्यान से देखा होगा या मार्केट स्टडी किया होगा तो कुछ नया प्रोडक्ट मार्केट में नहीं लॉन्च करे। व्हाई? देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। देयर इज अ लॉकडाउन फॉर 7 मंथ, पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब, उनका लिवलीहुड पे हैम्पर हुआ है, एजुकेशन हैम्पर हुआ है। द सिंगल पर्सन हु इज अर्निंग इन दी होम, उसका तो सैलरी नहीं आ रहा 2 महीना, तो पूरा घर का फाइनेंशियल रोलिंग खराब हो रहा है। तो कुछ भी हो जाए, तो इतना नया प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आ रहा, बिकॉज दे नो दैट कि अगर ये पीरियड में मैं इतना प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा तो माइट बी आई विल नॉट गेट गुड अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्स, I will not get good amount of things. For example, I bought a TV. मतलब हाल ही में मैंने टीवी परचेज किया, and I purposely took the older version. मैंने old version जानबूझ के लिया। There was a new version, basically उसमें भी आया था टीवी में, but उसका सेल्स नहीं था, मतलब hardly 10% people का सेल था, because we are young generation, we compare the things, we see the review on internet, वो प्रोडक्ट का रिव्यू हमने सब कुछ देखा। I didn't find any review. I didn't get any good reviews from the customers who can put onto the internet. तो मैंने जाके पूछा भाई कस्टमर इसमें दुकान में कि भाई इसका टेस्ट तो कम है, भाई क्या ऐसी प्रॉब्लम है क्या? तो दे सेड कि सर लॉकडाउन के जस्ट पहले इन द मंथ ऑफ February द प्रोडक्ट वाज लॉन्च एंड इमीडिएटली लॉकडाउन अनाउंस। So easy, there's a no option. People have not bought the product. So these are the things why the people basically have not purchasing the product. जिसके पास पैसा है या उनको ऑलरेडी वर्क फ्रॉम होम से पैसा आ रहा है तो दैट इज ओके। बट कंपनीज अगर आप देखोगे उनको दे नीड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अगर उनको अच्छा खासा परफॉर्म सर्विसेज नहीं मिल रहा है तो उनका प्रोडक्ट का सेल नहीं होगा। So nowadays, see the service industry, urban clap, I guess urban clap तो एक ऐप है। They give you everything service at your home। मतलब अगर आपको प्लम्बिंग का इशू है, एसी का इशू है, क्लीनिंग का इशू है, ओके हेयर कटिंग, तो दे मेंटेनिंग द एंटायर हाइजीन सेफ्टी और सारे चीज कंसिडर करने के बाद आपको आपका देते। तो दिस इज हाउ द स्ट्रेटेजीज आर मेड, how companies make strategies, they make their उनका performance अच्छा होना चाहिए। They analyze the performance, they study the performance with the previous performance। अगर उससे बेहतर हुआ तो उसको और बेहतर कैसा किया जाए, that needs to be understand। अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो we need to work out। Okay, then you have next point to make a right choice of a strategy। See, most importantly, company has more strategies। उनके पास कम से कम 10 से 15 स्ट्रेटेजीज होते हैं, लेकिन ये 10 से 15 स्ट्रेटेजीज में से हमको हमारा कौन सा स्ट्रेटेजी यूज करना है, दैट नीड्स टू बी अंडरस्टैंड। आपके पास 10 ऑप्शन हैं, लेकिन विच ऑप्शन इज गुड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, for your department, for your product and services, that needs to be understood by the people, that needs to be understood by the employees, that needs to be understood by the manager। Because एक गलत choice of a strategy can ruin the entire work of your team। अगर आपने आपका प्रोडक्ट सही है, आपका सर्विसेज सही है, लेकिन आपका टाइमिंग गलत है, तो बेसिकली आप उसको अच्छी तरह से उसको वर्कआउट नहीं कर पाओगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट, टेक एन एग्जांपल ऑफ सलमान खान। सलमान खान का हर साल अगर कितने साल से देखा जा रहा है, अगर कुछ सर्कमस्टेंसेस होते तो वरना हर साल ईद में उसका एक पिक्चर आता ही है। हर ईद में उसका एक पिक्चर तो कंपल्सरी आना ही है। तो he has a strategy कि ईद है भाई, फेस्टिवल है, so he can release the movie in that period, so people will get few responses to the movie। ओके, छुट्टी वगैरह होती है लोगों को तो जाके देख सकते हैं, तो दे कैन अर्न प्रॉफिट। ओके, सिमिलरली अगर सपोज करो आज टुडे 5 अक्टूबर, आज 5 अक्टूबर को कम से कम 4 पिक्चर रिलीज होने वाली है मार्केट में। तो वन ऑफ द प्रोडक्शन टीम व्हाट विल दे डू, दे विल पोस्टपोन द डेट। क्योंकि अगर आज हमने हमारा पिक्चर लॉन्च किया और ऑलरेडी 3 पिक्चर लाइन में है, तो वी डोंट नो व्हाट विल बी द रिस्पॉन्स। ऊपर से आपका हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, स्टोरी कैसा है, एवरीथिंग विल जज बाय द पीपल एंड द इंफॉर्मेशन स्प्रेडिंग। आजकल लोग रिव्यू तो फटाफट डाल देते हैं फेसबुक पे कि वॉच द रिव्यू मूवी को एंड सो पिक्चर अच्छा लगा नहीं लगा, तो खुद से रेटिंग देने लगते। सब लोग अभी सब स्टार बन गए हैं, दे गिव द रेटिंग बाय देयर ओन वे। So making a right choice of a strategy is important। कि which product has to be launched in which time,
Now Diwali is coming in the month of November. अभी नवरात्रि भी will not work out because due to Corona. Government has said कि भाई नवरात्रि से वर्कआउट नहीं होगा. दिवाली है, दिवाली में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश करेंगे. Because meantime till the month of November might be certain percentage of the COVID-19 infection will be get down. ऐसा एक prediction है. पता नहीं कितना सही है कितना wrong है. कम होता है तो ठीक है, वरना already we have unlocked many things. So company will see, does Diwali is the right time to launch a product? Will it will give good amount of response to a product? ये इनका सोचना पड़ेगा कि launching a product is not a small thing. People are really facing a huge crisis. People are facing a lot of problems. इतना we have seen personally कि लोग 2 से 3 buses change करके they are going to the office. People are standing in a queue in the morning by 4 o'clock to get the bus by 6 o'clock. Okay, and they go to their offices, they work for 10 hours and they again come home. अगर एक कोई बंदा विरार से आएगा, नाथोपारा से आएगा, उसको चर्चगेट जाना है, तो भाई उसको ऑफिस पहुंचते पहुंचते कम से कम 3.5 घंटा लग जाएगा. तो बेचारा वो घर पे रह सोएगा कब, उठेगा कब, फ्रेश कब होएगा, ऑफिस कब जाएगा, एंड व्हेन ही विल डू दी वर्क. बट यू टेल ना कि पापी पेट का सवाल है, पापी पेट आपको कुछ भी करा लेता है. So this is more important for them. So Diwali is a crucial time. Is one of the opportunity for companies to launch the product because Diwali में कितना भी कुछ हो जाए, people purchase. Some people, many people go for electronics. Fridge ले लेते हैं, oven ले लेते हैं, TV ले लेते हैं. Okay, some people go for car, some people go for jewelry. Okay, so these are things why people purchase in Dussehra and Diwali. So right, making a right cover strategy is important. कि भाई we should go for it or not, we should not go for it. That needs to be understood. Okay, understood the process of a strategy. So first form the objectives, then analyze the environment, internal environment, external environment, then determine the quantity, the volume. कितना volume का आपको percentage में आपको volume में आपको आपका increase करना है sales. Then always link the strategy with the functional line. Then conduct the performance analysis. अच्छा है, बुरा है, कैसा है आप देख लो. उसके बाद उसको analyze कर लो. And then basically go for right choice of a strategy. Right. Selecting a strategy is more important. अगर आपने गलत strategy utilize किया तो आपका सारा strategy fail हो जाएगा. Okay. Then next point you have features slash characteristics slash nature of a strategic management. See, this is a question यहाँ पे अगर आपको एग्जाम में आता है फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर, आपको ये सारे पॉइंट्स ही लिखने हैं, दूसरा कुछ अलग से लिखना नहीं. So first you have responsibility of a top management. So surely the conducting a strategic into organization, it is a responsibility of a top management. ये हमने starting से ही पढ़ के आया है. It is not a responsibility of a middle level manager. It is not a responsibility of a lower level manager. It is entirely the responsibility of a top level executive कि वह strategy बनाया जाए. Second, you have a systematic process. We have seen ना systematic process. सारा systematic process के हिसाब से होता है. Strategic management has a way of working. अब ऐसा नहीं है कि आपने सोचा प्लानिंग करना तो प्लानिंग करो. No. It required proper meeting. You have to do good amount of brainstorming. Brainstorming का मतलब होता है कि almost 10 to 12 people, 15 people will come together and they will discuss on certain strategies and discuss on certain products and services and they will come out with some solutions. So the systematic process. That's why it is said to be in strategic management. Then you have a long-term goals and objectives. As I've studied in our previous slide, a long-term goals and objectives. If you really want to achieve a long-term goals, you require good amount of objectives. तभी जाके आप उसको अचीव कर सकते हो. आपका गोल क्या हो गया, मुझे 80% निकालना है, ये आपका हो गया गोल. या आपका गोल होगा कि यू वांट टू वर्क इन अ MNC ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, आपको काम करना है. तो MNC में काम करने के लिए यू नीड टू स्कोर गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स इन ऑल सेमेस्टर. ऐसा नहीं कि आपको 5-5 6 KT लगा है और आप बोलोगे सर मुझे MNC में काम दे दो करके.
तो कंपनी सबसे पहले अगर फर्स्ट आपका ऑफर है या फर्स्ट जॉब है तो श्योरली दे विल गो विथ योर एकेडमिक्स। पहला जॉब के लिए एकेडमिक्स देखते ही हैं। सेकेंड जॉब के बाद कोई एकेडमिक्स देखता नहीं है, क्योंकि सेकेंड जॉब के बाद किसी को आपके आपने क्या पढ़ाई किया, कहाँ से पढ़ाई किया, कितना मार्क्स मिला, कितना परसेंटेज मिला, कोई नहीं चेक करता। आपका परफॉर्मेंस कैसा है वो चेक करते हैं। आपने प्रीवियस कंपनी क्यों छोड़ा वो चेक करते हैं। आपका पहला वाला पैकेज क्या था वो चेक करते हैं। आर यू हैव अ गुड पर्सन और नॉट, कि आपको निकाला गया है कि आपने छोड़ा है, रेफरेंस चेक से वो चेक करते हैं। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द सेकेंड जॉब। बट अगर आपको पहला जॉब चाहिए तो पहला जॉब में श्योरली you want good amount of marks in academics. Otherwise, you won't be able to join a good company. So set some goals in your life. I want to work in Infosys. I want to work with Patni. I want to work with Tata. I want to work with Cognizant. You have to set some goals as a management trend. So this objective will take over to your goals. Regular padhai, updated knowledge. Okay, you should be updated with everything what you have learned in the management school. Okay, you should have a dedication, a discipline. These are things will take you to your goal, ultimate goals. Okay, then you have to conduct a SWOT analysis. Anyone have heard about SWOT analysis? What do you mean by SWOT analysis? Strength, weakness, opportunity and threats. यस, ये आपके फर्स्ट के चैप्टर फर्स्ट ईयर में होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, SWOT एनालिसिस, Yes. स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा होगा कि SWOT एनालिसिस ऑफ द पर्सन, लेकिन यहाँ पे व्हेनेवर यू वांट टू मेक सम स्ट्रेटेजीज, आपको आपके कंपनी का स्ट्रेंथ, आपके कंपनी का वीकनेसेस, आपके कंपनी का अपॉर्चुनिटीज और आपके कंपनी का थ्रेट सोचना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने कंपनी का स्ट्रेंथ देखना है तो आपकी कंपनी का अच्छा नाम है मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, एप्पल का अच्छा नाम है मार्केट में, अच्छा खासा पैसा है उनका, अच्छा खासा ब्रांड है उनके पास। Whatever product they have launched till now, it is successfully appreciated by the customer. Weakness पकड़ लो कि they won't able to reach to the maximum people. Okay, they have got some उनके फोन में कोई इश्यू हो गया थोड़ा बहुत, या बेसिकली उनका स्टाफ अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या the people working into the organization are not cooperating nowadays. Okay, so these are some weaknesses you have. अपॉर्चुनिटी आप बोल सकते हो कि भाई बाकी कंपनी, अभी अगर आपने देखा होगा कि पहले आईफोन छोटे आते थे साइज में, but now they understood that people don't like small phone. The people want a bigger phone in their hand. तो अगर Apple 10, Apple 11, Apple 11 Pro, उनका अगर आप साइज देखोगे स्क्रीन का तो 5.5 इंच का स्क्रीन है इनका, सारे सारे फोन के, with three cameras behind the phone, because other companies are also giving such kind of options. ओके, तो उनको बेसिकली वो अपॉर्चुनिटी है कि हम भी हमारा प्रोडक्ट को बोल्ड कर सकते हैं, हम भी हमारा प्रोडक्ट को थोड़ा सा अलग से डिफाइन कर सकते हैं। तो दिस अपॉर्चुनिटी हैव दे इन देयर हैंड, राइट? दे हैव n numbers of competitors in the market. उनका अच्छे खासे मार्केट में कॉम्पिटिटर्स है, बट एप्पल को कोई घंटा फर्क पड़ता है। एप्पल इज समथिंग लाइक दे आर दे ओन, दे बेसिकली नो हाउ टू रन द बिजनेस। तो दे हैव अ थ्रेड, ऐसा नहीं कि बस थ्रेड नहीं है, बट एप्पल को सबसे बड़ा थ्रेड है ब्लैकबेरी है। इन इंडिया पीपल डोंट यूज ब्लैकबेरी, बट इन फॉरेन कंट्रीज में ब्लैकबेरी आर वन ऑफ द सेफेस्ट फोन। अगर एप्पल के पास कोई सेफ फोन है वो ब्लैकबेरी है, बिकॉज इंडिया में टाइम था जहाँ पे पीपल वर हैविंग अ ब्लैकबेरी। जैसे एप्पल को आप क्रैक नहीं कर सकते जल्दी से, यू कैन क्रैक दिस फोन बट यू रिक्वायर्ड लॉट ऑफ नॉलेज। ओके, यू रिक्वायर्ड n numbers of coding, decoding, सब कुछ चाहिए आपको, तब जाके वो खुलेगा। सिमिलरली ब्लैकबेरी में वैसा ही है, ब्लैकबेरी इज नॉट सो इजी टू डिकोड इट। यू कैन नॉट, अगर आपको फोन गुम भी जाता है तो कोई ओपन नहीं कर पाएगा वो फोन को। देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच हैपेंस इनटू द प्रोडक्ट। तो आपको थ्रेड भी है। तो कंपनी need to analyze see what are their SWOT, what are their strengths, what are their weaknesses, what are their opportunities and what are the threats. See, weakness जो होगा उसको कम करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी है आपके पास में, फॉर एग्जांपल अभी दिवाली आ रही है एंड कोरोना भी है, तो दे कैन रिड्यूस द प्राइस लिटिल बिट
of their product, so the other competitors से आप उसको compete करके अपना रेंज थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं. See, there are people who are really crazy for Apple. ये आप कितना भी दूसरा फोन दे दो आज का उनके हाथ में, आप दे दो सैमसंग S10, S12, कुछ भी दे दो आप, लेकिन वो लोग जाएंगे एप्पल के हाथ में, because they know the worth of Apple, they know the worth of iPhone, they know कि iPhone एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कोई भी किसी के भी हाथ में हो, सोचा करने के लिए नहीं होता एप्पल फोन. एप्पल फोन अगर है किसी के पास, you can do lot of things. The most important part. And threats are the competitors in the market who really give good amount of competition. Okay, they make the price of product so competitive so that other companies do not match the product. बाकी कंपनीज उनके प्राइस को मैच नहीं कर सकता है या 19-20 होता है बेसिकली. Some products have different camera features, some products has different storage capacity, 64 GB, 128 GB screen, उसके बाद कलर, एंगल. अभी एक ऐड आता है ना टीवी पे, आई डोंट नो, आई गेस ओप्पो का ऐड आता है जहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी साइंड बिहाइंड द फोन. तो अभी एक साइन के वजह से भी द प्रोडक्ट विल गो टू द नेक्स्ट लेवल. ऐसा भी है, अरे महेंद्र सिंह का साइन है पीछे उसको, तो वी शुड परचेज दैट प्रोडक्ट. तो ऐसा भी लोगों के मन में वो आता है. नाउ ड्यू टू कोविड-19 आई डोंट हैव टू गो टू स्टोर. आपके पास अमेजोन है, आपके पास फ्लिपकार्ट है, आपके पास एन नंबर ऑफ ई-कॉमर्स के साइट्स हैं. गो कंपेयर योर प्रोडक्ट एंड परचेज योर प्रोडक्ट. 2 दिन में आपका फोन आपके घर पे. दिस इज हाउ यू ऑलवेज डू दिस थिंग. So conducting SWOT analysis is important. Then you have defined mission. हमने पहले भी पढ़ा है, defined mission का काम होता है the short term goal, the short term things you have to achieve. 5 years, 10 years, 15 years, जो छोटे साल के होते हैं आपके मिशन, वो उसको बोलेंगे वाले defining your mission. अगर मिशन आपका क्लियर नहीं हुआ, आप अपने गोल अचीव नहीं कर सकते. That's why defining a mission is important. Consider influence of environment. Which environment I need to be considering this? यहाँ पे कौन सा आपका environment होना चाहिए? Anyone? Which environment? Marketing environment or business environment? The internal environment and your external environment. So both environments you have in this, so that needs to be think. So in this chapter ना again and again वही आपके business policies, mission, vision, goals and objectives वही घुमा फिरा के आ रहे हैं. उसमें कुछ changes नहीं, जो आपने पहले बार पढ़ा ना वही आप घूम फिर के आएंगे. Then you have wide coverage. See, whenever you have strategies, the strategies cannot be implemented, cannot be used for single department. It has a wide coverage. जितने भी आपके डिपार्टमेंट है, जितने भी आपके कंपनीज के ब्रांचेस है या जितने भी आपके ऑफिस है इंटायर कंट्री, वहाँ पे सब जगह पे लागू होगा. That's more important. So it is a wide coverage whenever you talk about a strategic management. Implement alternative strategies. As I said earlier, you cannot have a single strategy. You need to have at least 4 to 5 different strategies. अगर आपका एक स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रहा है तो आपको बैकअप प्लान आपके पास होना चाहिए. अ प्लान बी, अ प्लान सी, अ प्लान डी, व्हाट स्ट्रेटेजीज यू हैव. Multiple decisions. The multiple decisions can be taken whenever you go for a strategic management. Continuous process. So it is not something like you took some decision, you made some plans, you made some strategies, and it is over. No, it is something like it is a continuous process. It is more importantly, अगर आपने फर्स्ट की मंथ के लिए या फर्स्ट क्वार्टर के लिए कोई स्ट्रेटेजी बनाया है and it has worked to 80 to 90%, so again you have to make some different strategies that can be useful for the people, that can be useful for the company for next 6 months. हमने 80% ग्रोथ किया है, ओके, नाउ विल टारगेट फॉर 100%. तो 100% को आने के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो अगेन फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स का उन लोग का अलग प्लानिंग होता है. सो इट इज समथिंग लाइक इट इज नॉट कि वंस यू मेड स्ट्रेटेजी एंड पूरा साल वो चलता रहेगा.
ये हर दिन कुछ ना कुछ थोड़ा चेंजेस करते रहते हैं। तो 3-3 महीने में, 2-2 महीने में या हाफ ईयरली, डिपेंड्स अपॉन कंपनी पॉलिसी, दे मेक अ लिटिल बिट चेंजेस इनटू द स्ट्रेटजी कि कैसा-कैसा चेंज करना है। अभी फेस्टिवल्स है, नवरात्रि है, दशहरा आ रहा है। तो दशहरा इज वन ऑफ द क्रूशियल पीरियड फॉर हिंदू पीपल। हिंदू लोग ना ज़्यादा करके यहाँ पे गोल्ड परचेज करते हैं। वी पीपल परचेज गोल्ड इन दिस टाइम दशहरा में। वी परचेज एक्सेसरीज, वी परचेज समटाइम्स व्हीकल, कोई बाइक लेता है, कोई कार लेता है, या कोई लोग घर पे सामान लेते हैं। तो दिस हाउ द कंपनी कैन चेंज द प्लानिंग, दे कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन। अरे फेस्टिवल आ रहा है, तो फेस्टिवल खत्म होने के बाद दे अगेन चेंज द स्ट्रेटेजी। और फेस्टिवल से पहले और फेस्टिवल के बाद तो वो भी स्ट्रैटेजीज बदलते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, हमको और क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो आप देखो हर शॉप के बाहर, दैट वुड बी रिलायंस, दैट वुड बी नॉर्मल स्टोर, वो भी शोरूम होगा या बेसिकली ज्वेलरी शॉप होगा, आपको अच्छे बड़े बड़े बैनर्स मिलेंगे कि ये स्कीम है, वो स्कीम है, 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, आपको ये फ्री मिलेगा, वो फ्री मिलेगा। इज ऑल कंपनी ऑफ स्ट्रैटेजी। Once the festival is complete, the festival is over, तो सारे बैनर ऊपर जाएंगे, because that is a period where you can earn profit. So again आपका फैक्ट्री खत्म, न्यू स्ट्रैटेजी। So it's a continuous process. It's something like it's going on and on, on and on, on and on. तो ऐसा नहीं कि एक बार हो गया तो हो गया। Then universal applicable. So this is something like strategy is not implemented in isolation. आप कोई भी स्ट्रेटेजी आइसोलेशन में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। आपको जो भी करना है दैट शुड बी यूनिवर्सल एप्लीकेबल। तो इट कैन बी एप्लीकेबल एनीवेयर। You go to foreign countries, you go in Indian companies, जहाँ पे भी आपके ब्रांचेस है, अगर फॉर एग्जांपल टाटा हैज अ ब्रांच इन इंडिया, जापान, नेदरलैंड, जर्मनी, रशिया, जहाँ पे उनका ब्रांच होते हैं, वहाँ पे बेसिकली आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट while implementing strategies, ट्रेड कंट्रीज का, फॉर एग्जांपल जापान है तो जापान के इकोनॉमिकल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, टेक्निकल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, लीगल फैक्टर को कंसिडर करने के बाद ही आप वहाँ पे स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करोगे। ऐसा नहीं है कि इंडिया में अलग है तो वहाँ पे भी अलग हुआ। इंडिया में जो भी सब राम भरोसे आज के डेट पे, तो इट इज नॉट समथिंग लाइक कि भाई अपने कुछ इम्प्लीमेंट कर तो हो जाएगा। फॉरेन कंट्रीज का पॉलिसी अलग होता है और इंडियन का अलग होता है पॉलिसी, तो हर कंट्री का पॉलिसी के हिसाब से चलना चाहिए। देन यू हैव कमिटेड लीडरशिप। कि लीडरशिप मतलब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, स्ट्रेटेजीज आर मेड बाय टॉप मैनेजमेंट। तो जो भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं टॉप मैनेजमेंट, दे शुड बी कमिटेड। ऐसा नहीं कि आपने स्ट्रैटेजी बना लिया उसके बाद आपने हाथ खड़े कर लिए कि नहीं मैंने तो ऐसा नहीं वैसा बोला था, वैसा नहीं ऐसा बोला था, ऐसा नहीं। स्ट्रैटेजीज आर इनटू रिटन फॉर्मेट। वॉट एवर स्ट्रैटेजीज होते हैं, जो बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं, इज ऑल इन अ रिटन फॉर्मेट। So leader of an organization who leads the company, for example, CEO of the organization, directors of the organization, the owner of the organization, they should be committed that whatever strategies we have formed, that strategy needs to be implemented in a proper way. If something went wrong, I am the head responsible for that. ये मेरा पूरा responsibility होगा। Okay, example आप धोनी का लेते हो, धोनी was one of the two captains, he was one of the person who lead the Indian team. Okay, he's a true leader, he one of the true leader आपको बोल सकते हो। Because अगर अच्छा होता है या हमने कुछ मैच जीत लिया तो credit goes to entire team. But अगर हमने मैच हारा, there's something went wrong, I am responsible for. Being a captain of an Indian team, I am responsible for that. So committed leadership is very important when you talk about a strategy. Understood the entire picture? Any doubt in any point? Anyone? किसी को कुछ डाउट है, समझ में नहीं आया, कुछ है ऐसा? Anyone? सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है? नो सर, नो। हाँ, फाइनेंस वालों को मैंने बोला है कि ये अपनी मेगा मैडम स्टार्ट लेते बाय 11:30, तो स्टिल वी हैव 15 मिनट्स, सो आई विल फिनिश वन मोर स्लाइड। मेगा मैम को ऑलरेडी मैंने व्हाट्सएप किया हुआ है। ओके, सो डोंट वरी।
समझ में आया? Yes, sir. कॉन्सेप्ट Yes, इजी sir. समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है? आर वी गोइंग फास्ट? ऐसा कुछ है नहीं ना, प्रॉपर जा रहे हैं हम लोग? ओके, तो विल गो फॉर नेक्स्ट स्लाइड, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अभी ये मैंने पिछले 1 घंटे से यही समझाया है, अभी आप लोग बोलो इसमें आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है ये स्लाइड में। विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, एनालाइजिंग द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एनालाइजिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट, formulating strategies, implementing strategies and evaluating strategies। ये मैंने कवर किया है अब तक कि नहीं कवर किया? यस सर, कवर किया है। यस सर, सब कवर किया। इसमें सारे कवर हो चुके हैं हमारे। अगर कोई भी स्टूडेंट को कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज रेज द हैंड या बोलो मुझे कि सर एक बार मुझे वापस एक्सप्लेन कर, तो आई विल एक्सप्लेन। कोई भी पॉइंट अगर आपको इसमें से लग रहा है कि बाबा सर और एक बार हमको थोड़ा समझाओ, तो आई कैन डू दैट, क्योंकि ये सारे पॉइंट हमने पिछले 2 स्लाइड में पूरे कवर किए हैं, सारे चीज। एनी स्टूडेंट? ओके, चलो, आई गेस कोई प्रॉब्लम है। नाउ विल कम टू labels of strategy. Can everyone see the slide presentation? यस सर। यस सर। Okay. Yes, sir. So levels of strategy may you have 3 layers. You have first you have a corporate strategy, then you have a SBU, strategic business unit. Then you have your functional department, that's the marketing department, manufacturing strategy, R&D, accounts control, etc. So whenever strategies are formed at the first level, जो भी आपका first होता है, the owner of the organization, the directors of the organization, the chairperson of the organization, the top executives who really form the organization. These are the people who make these strategies. These are the people who form the strategies. These are the people who basically say that कि जो हमने strategy बनाया है वो हम उसको implement करेंगे. So corporate strategy are the strategies to basically make the strategies for the entire company. Now we come to the second level, strategic business unit. Can anyone tell about what do you mean by SBU? SBU का मतलब होता है स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। इसका मतलब क्या है स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट? एनीवन? नो? So can you repeat the question? I'm asking people कि what do you mean by strategic business unit? जो वहाँ पे लिखा हुआ है टर्मिनोलॉजी स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट स्ट्रैटेजी, उसका मतलब क्या है? Any guesses? अगर गलत हुआ तो गलत हुआ। I am there to tell you the right answer. Sir, location of the business unit. Okay, location of the business. चलो ठीक है। Someone has attempted. और कोई आंसर दे सकता है? सर जो बिजनेस के स्ट्रेटेजी मतलब प्रॉफिट और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे जो फोकस करता है। ओके ओके, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। उसके बाद It analyzes or evaluates the strategy and the process. ओके ओके, चलो, एटलीस्ट आई एम हैप्पी दैट यू हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। कि स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, आप वहाँ पे ले लो टाटा ग्रुप। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के बाद हम लिखेंगे टाटा ग्रुप, दिस इज अ टाटा ग्रुप पूरा। SBU का मतलब होता है ना, यू हैव 3 कॉलम्स इन दिस, ओके। SBU का मतलब होता है फर्स्ट वुड बी टाटा स्काई, सेकंड वुड बी टाटा मोटर्स, थर्ड वुड बी टाटा स्टील। तो दिस इज द सेपरेट यूनिट ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो SBU का मतलब होता है कि हम टाटा स्काई का पूरा एक चेन संभालेंगे। दूसरा होगा टाटा ऑटोमोबाइल्स, तो द सेकंड SBU कैन बी सेड ये स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अपने आप में कंपनी है, वो टाटा ग्रुप के अंडर आती है, लेकिन स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अपने आप में खुद की कंपनी है। देन यू हैव टाटा स्टील, द थर्ड कंपनी विल बी टाटा स्टील, बट द 3 कंपनीज विल कम अंडर द ग्रुप ऑफ टाटा।
टाटा ग्रुप के अंदर तीनों कंपनियां थी, और हर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के अंदर यू हैव ऑल द फंक्शनल डिपार्टमेंट। वो आपका हो गया मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट, ओके, HR डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऑफिस डिपार्टमेंट। तो उसको बोलेंगे हम लोग फंक्शनल डिपार्टमेंट। तो फर्स्ट यू हैव योर कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, सेकेंड यू हैव योर SBU, दैट इज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का मतलब होता है अपने आप में खुद की कंपनी। जस्ट आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, उसमें आप लिखो कि बाबा टाटा ग्रुप कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी विल बी टाटा ग्रुप। उसके बाद फर्स्ट SBU का मतलब होता है टाटा स्काई, सेकेंड SBU टाटा ऑटोमोबाइल, थर्ड विल बी टाटा स्टील। तो ये तीनों भी अपने आप में खुद की कंपनी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये तीनों कंपनी एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेगी। टाटा स्काई विल हैव अ डिफरेंट टीम, दे हैव अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी, दे हैव अ डिफरेंट कस्टमर। Similarly, Tata Automobiles are mainly into heavy vehicles. इनके सारे ट्रक ज्यादा होते हैं, तो अगेन इनका स्ट्रेटेजी अलग होगा, इनके एम्प्लॉयज अलग होंगे, इनके कस्टमर्स अलग होंगे। Tata Steel is also different product altogether. They will have a different strategies, different customer, different employees. But whatever strategy are made, the major strategies come from the corporate strategy. रतन टाटा corporate strategy बनाएंगे, उसके बाद जो भी होगा VP SBU यूनिट 1, VP SBU यूनिट 2 एंड VP SBU यूनिट 3, ये इनके तीनों के अलग अलग स्ट्रेटेजीज बनेंगे। एंड अगेन दे हैव अ डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट। टाटा स्काई का मार्केटिंग डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का HR, फाइनेंस, मार्केटिंग, R&D डिपार्टमेंट अलग होगा। एंड अगेन फॉर टाटा स्टील द डिपार्टमेंट विल बी डिफरेंट। अंडरस्टूड? समझा आप लोग को? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. डाउट है इसके अंदर? आई डोंट हैव पेन टू राइट इन दिस, बट मैं समझा पा रहा हूँ आपको 3 लेवल। Yes, sir. हाँ सर। Understood levels of strategy. So first is corporate strategy, which is done by top level. Then you have an SBU. Then you have a function department. Okay. So we will stop here because I guess finance lecture is scheduled at 11:30. So tomorrow we're gonna start with characteristics and features of SBU. हम SBU के साथ चालू करेंगे। Okay. Okay, sir. तो सौम्या, tomorrow timing I'll confirm in evening कि हम आप कब चालू करेंगे, क्योंकि Okay, sir. tomorrow I have to go to office. तो ऑफिस में जाऊँ तो घर से I leave by 7 o'clock in the morning. तो ऑफिस तो मुझे पहुँचते 9:30 तो होने चाहिए, 9:30 10:30। तो probably we can start by 10 o'clock in the morning. Okay, sir. हाँ, तो ज़्यादा करके मैं 10 o'clock को स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा आगे पीछे होगा, लेकिन we will take the lecture tomorrow morning. Okay. So shall we stop here? Yes, sir. Yes, sir. We can stop it. Yeah. Okay. So everyone understanding? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you. Thank you very much. Yes, I will send the presentation, but at the end, not now. For one, I'll give the presentation slides at the end of the chapter. तो चैप्टर पहले खत्म करता हूँ, उसके बाद आपको फर्स्ट चैप्टर दूंगा, ठीक है? डोंट वरी, आपको सारे यूनिट के चैप्टर मिलेंगे। एवरी चैप्टर यू विल गेट, डोंट वरी अबाउट दैट। Okay, thank you everyone. And HR lecture will start by 11:45. HR lecture, please सौम्या, सार्थक है क्या एक ग्रुप में? सार्थक? नहीं सर, सार्थक अभी नहीं है। ओके, तो इन्फॉर्म कर देना कि HR lecture will start by 11:45. Okay, sir. So, thank you.